السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے اور دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے 1973 کے آئین میں 3 ترامیم کے لیے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں آئینی پیکج لانے کا اعلان کیا ہے۔ اب حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کیوں کرانا چاہتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے، کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ کئی سینیٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے، اور پھر وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیسے دے کے آئیں گے؟ وہ کوئی حاتم تائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ تو حبیب صاحب، آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بے نقاب ہوں گے وہ لوگ جو اس بل کی حمایت نہیں کریں گے، اور دوسرا ابھی سے ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کون بے نقاب ہوگا اصل میں، اور یہ بل لانا اتنا آسان ہوگا پارلیمنٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم خود ایکسپوز ہو گئے۔ بے نقاب کا لفظ چونکہ اردو میں تھوڑا سخت لگتا ہے، اس لیے میں اس کو انگریزی کے ورڈ سے ترمیم اس کی کروں۔ انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ وہ کیسے ایکسپوز ہوئے؟ وہ اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جو ان کے ایم پی ایز، فرض کر لیتے ہیں وزیر اعظم ٹھیک کرے کہ آج جو ان کے ایم پی ایز پیسے لے رہے ہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے کسی سینیٹر کو، تو اگر ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنا بیلٹ اوپن کر کے دکھا کے ووٹ ڈالیں گے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پیسے کوئی اور نہیں پکڑ لے گا؟ کیونکہ پاکستان میں تو یہ رواج رہا ہے نا بھائی، کل کو کیا ہم یہ سنیں گے کہ فلاں پارٹی کے ایم پی ایز نے فلاں سینیٹر کو اس لیے ووٹ ڈالا کہ ان کے لیڈر نے انہیں کہا تھا کہ فلاں کو ووٹ ڈالو، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے لیڈر صاحب نے خود پیسے پکڑ لیے؟ اچھا بھائی، یہ کون سا آرگیومنٹ ہے کہ جس میں میں وزیر اعظم کو تو سمجھوں کہ وزیر اعظم ایمانداری کے دیوتا ہیں، اور سارے کے سارے ان کی پارٹی کے اندر جو پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے شیاطین ہیں جو بات بات پہ پیسے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لگا کے آئے گا تو پیسہ کمائے گا؟ تو بھائی وزیر اعظم نے تو خود اپنی پارٹی کے قرضے اپنی جیب سے اتارے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے وزیر اعظم نے پیسے بنائے تھے؟ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ اس کے بعد کیا جو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں جن لوگوں نے پیسے لگائے اس کے الیکشن کے لیے، جہانگیر ترین نے لگائے، خسرو بختیار نے لگائے، تو کیا ان سب کو بھی پیسہ بنانے کا موقع ملا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے نزدیک سب سے پہلے تو سیاست کی تعریف ہی غلط ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی سیاست سے کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے وہ دراصل پیسے اس نے لگائے ہیں تو وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ایک تو پہلے اس سیاست کی اس تعریف کو سمجھ رہے ہیں، آخر انہیں کس چیز نے ڈرائیو کیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ پیسہ تو نہیں تھا نا؟ تو لہٰذا وزیر اعظم کا یہ استدلال سرے سے غلط ہے، اور اس نے وزیر اعظم کو ایکسپوز کیا ہے کہ خود وزیر اعظم کو یا تو جمہوریت کے بارے میں، جدید جمہوری تصورات کے بارے میں علم نہیں ہے، یا وہ ایکچولی جمہوری تصورات سے ان کی جو شناسائی ہے وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ان کے ساتھ کشش بھی ان میں محسوس نہیں ہوتی، ان کی کوئی کمٹمنٹ بھی ان جمہوری تصورات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس استدلال کی بنیاد پر اگر آپ سینٹ کے الیکشن کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی غلط ہے۔ ہاں، جمہوری راستہ کیا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے نا کہ جمہوری راستہ سمپل سا یہ ہے کہ بھائی آپ امریکہ اور آسٹریلیا کی طرح سادہ طریقے سے الیکشن عوام کے سپرد کر دیں، براہ راست کر دیں، پارٹیاں اپنے ممبرز دیں، لسٹ دیں متناسب نمائندگی کے ذریعے، جس کو جتنے ٹکٹ میں جس کو جتنے ووٹ ملے اتنے اس کے ممبر منتخب ہو کے آ جائیں گے۔ عوام کو شامل کرنا جمہوریت کی طرف قدم ہے، عوام کو نکال دینا اور خفیہ بیلٹ کو نکال دینا دراصل پارٹی کی آمریت قائم کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو دستوری تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ اس آپشن کی طرف جا نہیں رہے، اوپن بیلٹنگ کی بات کریں، اپوزیشن کر لے، میں تو سمجھتا ہوں اپوزیشن بھی یہی کر رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ ساتھ کل بابر اعوان نے جب اعلان کیا اس آئینی پیکج کا تو ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اب موقع ہے وہ تعاون کرے اس معاملے پر، لیکن ان سے ایسی امید نہیں ہے۔ تو اگر انہیں اپوزیشن سے امید ہی نہیں ہے تو پھر کس امید پر بل لے کر جا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت تو نہیں ہے۔
دیکھیے میں حبیب صاحب کی بات پہ ایک دو باتیں ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپوزیشن کی کچھ پارٹیز کے بغیر حکومت آئینی ترمیم کم از کم نہیں پاس کر سکتی. ابھی کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس پینڈنگ ہے تو یہ بات بھی واضح نہیں کہ آئینی ترمیم درکار بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. جو سپریم کورٹ کے اندر حکومت نے ریفرنس فائل کیا ہے اس کی پریئر یہ ہے کہ کیونکہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے الفاظ میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اور سینٹ کا الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہم اگر سپریم کورٹ مناسب سمجھے یا سپریم کورٹ کی اوپینین اس حق میں ہو تو کیا ہم صرف الیکشن ایکٹ کو بدل کے، آئینی ترمیم نہیں، سمپل میجورٹی سے الیکشن ایکٹ کو بدل کے، الیکشن ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا تو کیا ہم اس طرح کروا سکتے ہیں؟ اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حق میں آ گیا تو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی، سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ جو کہ حکومت شاید اپوزیشن کے بغیر کر سکتی ہو. لیکن اگر آئینی ترمیم ہی کرنی پڑی، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی طرح آیا یا کل کو اس طرف بات چلی کہ آئینی ترمیم کرنی پڑے، تو 2/3 میجورٹی کا نمبر تو حکومت کے پاس نہیں ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر، اور کسی نہ کسی میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کو کم از کم ایک کو حکومت کو اپنے ساتھ ملا کے تو یہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل مرحلہ اس وجہ سے ہے کہ اس بات کو کیسے ڈینائی کریں کہ اب سے پہلے سیکرٹ بیلٹس کی وجہ سے سینٹ کے اندر خرید و فروخت ہوتی رہی ہے لوگوں کی، جس کو ہم میڈیا کے اوپر حبیب اکرم صاحب اور میں اور دیگر ہم جیسے لوگ ہم اس کو تھوڑا سا جمہوری رنگ دینے کے لیے کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. یہ نہیں کہ لوگ بکے بلکہ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. لوگوں کا ضمیر جاگ گیا تھا جب وہ سنجرانی صاحب کے لیے ووٹ کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بکے، لیکن ہم نے اس طرح کی باتیں ضرور دیکھی. اگر پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 1973 کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں تو کون سا سینٹ الیکشن ایسا ہے؟ حبیب صاحب نے بڑی تنقید کی وزیر اعظم صاحب کی، اور شاید کچھ تنقید برحق ہو، لیکن اس بات کے اوپر کیا انحراف ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کو کہ سینٹ کے تقریباً تمام الیکشنز میں، اور تقریباً بھی میں نے بس مجبوراً کہا، سینٹ کے تمام الیکشنز کے اندر پیسے چلے ہیں، بالکل چلے ہیں. لوگوں نے خواہ وہ سینٹ کے، خواہ وہ پروونشل اسمبلی کے اور دیگر لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ خریدے ہوں یا پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو پیسے دے کے اپنا نام اس میں ڈلوایا ہو، سینٹ کے الیکشن کے اندر لوگ، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر لوگ بہت سا پیسہ استعمال کرتے ہیں، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک الائنس قائم کی جاتی ہے. یہ اس سے تو کوئی انحراف نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ماضی کے اندر سینٹ کے الیکشنز میں بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، بلکہ سب سے ریسنٹ الیکشن تک کے اندر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی رہی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اب ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے آسان طریقہ یا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہو کہ سب لوگوں کے ضمیر پہلے سے جاگے ہوئے ہوں اور کسی کو ضمیر جگانے سلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہر بندہ اپنے فہم اور ضمیر کے مطابق درست ووٹ کرے. لیکن جہاں پہ یہ نہیں ہو رہا، اور ہماری 40-50 سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہو رہا، تو اس میں کس بات سے، اس میں کیا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ہو جائے تو چلیں، شاید پھر بھی لوگ پیسے لے کے ووٹ کریں، چلیں شاید پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے ووٹ کریں، لیکن آپ، میں، حبیب صاحب ہر روز یہ بتایا کریں گے کہ فلانے شخص نے فلانا ووٹ کیا تھا جو کہ اس کی پارٹی لیڈرشپ کے مطابق نہیں تھا، کسی اور کنسیڈریشن کے مطابق تھا، یا فلانے شخص کو ٹکٹ ملی تھی یہ کسی اور کنسیڈریشن کے مطابق تھی. ہمیں سامنے کم از کم ایک امریکہ کے چیف جسٹس تھے، ان کا نام تھا جسٹس برانڈائز. انہوں نے ایک بڑا فیمس جملہ کہا کہ سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ، یعنی کہ کسی بھی چیز سے اگر آپ نے جراثیم ختم کرنے ہوں تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اس کو اوپن کریں، اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، لوگوں کو پتہ ہو شاید فیصلے پھر بھی ویسے ہی ہوں، لیکن کم از کم آپ اور میں یہ کہہ سکیں کہ فلانے شخص نے اپنے ضمیر کو جگا کے کوئی فیصلہ کیا یا سلا کے کوئی فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کر لیے معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے. شہباز گل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے یہ آئینی ترمیم منظور کرائی جائے گی پارلیمنٹ سے؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دینے والی. اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی، 2/3 اکثریت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، کیا کریں گے؟ کیسے بل پاس کروائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو اس ساری چیز کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر پیسہ چلتا ہے؟ کیا سعد رسول اکیلے کہہ رہے تھے؟ کیا حبیب اکرم اکیلے کہہ رہے تھے؟ نہیں، پوری قوم کہتی ہے. پوری قوم کو پتا ہے کہ 50-50 60-60 کروڑ لگا کے لوگ سینٹ میں خرید و فروخت کر کے سینیٹر بنتے ہیں.
जब 50 से 60 करोड़ रुपए लगा के आप सेनेटर बनेंगे तो आप उन पैसों को अपने 6 सालों में पूरा भी करेंगे। फिर पूरा करने के लिए आप हर तरह का कंप्रोमाइज भी करेंगे और आप हर तरह की करप्शन करने के लिए भी आमादा होंगे। तो ये तो हम सब कह रहे हैं, नून भी कहती थी, पीपल्स पार्टी भी कहती थी। जब शहबाज गिल साहब, आपकी पार्टी जब इलेक्शन जीती, यकीनन उसको बहुत सारे लोगों ने फाइनेंस किया था और वो हुकूमत में भी शामिल हैं, तो क्या उन लोगों को आपकी हुकूमत ने पैसा बनाने का मौका दिया है? नहीं, देखिए दो बातों को आपने अलग अलग रखना है सर। हाँ, एक है कि किसी ने पैसा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता आपने कितना पैसा बनाया है, मैंने कितना पैसा बनाया है। आर्गुमेंट तो आपका है ना कि लोग पैसा बनाएंगे, वजीर आजम को आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट तो वजीर आजम का, आपने जवाब देना इसका कि लोग आएंगे, अगर सेनेट में आएंगे, अगर पैसे दे के आएंगे तो पैसा बनाएंगे। आपकी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने फंड किया, क्या उन लोगों को पैसा बनाने का मौका पीटीआई ने दिया? जी, अब इस दफा जवाब दे लेने दीजिएगा क्योंकि आपका सवाल वही है जो मैं पहले भी जवाब दे रहा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये कर रहा हूं कि मेरी पार्टी में अगर तो कोई पैसे लगा कर आया और आपके पास इस बात का प्रूफ है, जब हमारे पास प्रूफ आए तो हमारी वाहिद पार्टी है जिसने केपीके के अंदर अपने 20 के करीब एमपीएस निकाले, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। होता तो सबके यहाँ है, ये पाकिस्तान में ये मंडी तो हर दफा लगती है, ये सिर्फ इमरान खान ने किया कि अपने 20 के करीब एमपीएस निकाले। अच्छा, अब इलेक्शन के अंदर आप ये कह रहे हैं कि लोग इलेक्शन कैंपेन के दौरान पैसा लगा के आते हैं। मैं आपसे इंटेलेक्चुअली बिल्कुल अग्री करता हूं कि जब करोड़ों रुपए लगेंगे सियासत के अंदर, आपकी तरह का, मेरी तरह का मिडिल क्लास बंदा आ ही नहीं सकेगा, तो करप्शन तो होगी। जब करोड़ों रुपए लगा के लोग आएंगे तो हमें अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना है। अब आपका सवाल कि किसी ने पैसा बनाया है कि नहीं बनाया, देखिए इसकी तो सबूत आपको किसी के बारे में भी देना पड़ेगा, वो मैं हूं, आप हूं, या किसी पर सबूत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये कहना कि एक साइड के ऊपर ये हो गया है, मीन के लोग इलेक्शन में अपनी कैंपेन पे पैसे लगाते तो खरीदो फरोख्त भी करने दें, ये तो मेरा ख्याल किसी सूरत भी बात दो कोई कंपैरिजन नहीं है। आप तो खुद अमेरिका में रहे हैं। इसका मतलब ये है, एक सेकंड बात सुन लीजिएगा, कल को इसका मतलब ये है कि एक बंदा कहे कि मैंने टेलीविजन पर 5 करोड़ की ऐड दे दी है, और दूसरा जो कैंडिडेट है वो कहे मैंने 5 करोड़ की ऐड नहीं देनी, मैंने डायरेक्ट 5 करोड़ के वोट खरीद लेने हैं। तो क्या आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे? दोनों को एक जैसा मुजरिम कराएं देंगे? अगर मैं आपका आर्गुमेंट मान लूं फर्क रखिए और वजीर आजम का आर्गुमेंट भी मान लूं कि जनाब वाकई बड़ा पैसा चलता है और पैसा नहीं चलना चाहिए, तो इससे मेरे दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होंगे कि अगर कल को शहबाज गिल की पार्टी हो, फर्ज किया, तो शहबाज गिल साहब ही ना सारे पैसे ले जाएं, या हबीब अकरम की पार्टी हो तो हबीब अकरम ही ना सारे पैसे ले जाएं और अपने लोगों को सेनेटर बनवा लें। सवाल यहाँ पे, अगला सवाल, मैं इससे एक ऑब्जर्वेशन के साथ ये सवाल है कि हमें आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, हमें डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। अमेरिका में ये मसला पैदा हुआ, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, 1913 में तरमीम कर ली उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में ये मसला पैदा हुआ, उन्होंने आइन में तरमीम करके इलेक्शन को बरह रास्त कर दिया, तो हम भी कर लें। अच्छा, इसमें आपकी बात देखिए, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा चलता है सेनेट के ऊपर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने ये कहा कि कैंपेन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, मैं आपसे एग्री करता हूं, उसमें मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन कैंपेन के अंदर पैसा लगाना जो है वो आप फिर भी इखलाकी तौर पर वो उस तरीके से बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैंने ऐड दिया, मैंने बिल बोर्ड लगाए, मैंने ये किया, बजाय इसके क्या वोट खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा आसान हल है कि अगर ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो जाए तो आप वाली बात ही क्लियर हो गई, एक किस्म का डायरेक्ट इलेक्शन ही हो गया, लाइव हो टेलीविजन के ऊपर पता चले। डायरेक्ट इलेक्शन से मुराद ये है लोगों के वोट, आप अपनी मर्जी से डायरेक्ट इलेक्शन की तशरीह ना करें, दुनिया समझती है डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है। नहीं हबीब साहब, एक तो थोड़ी रेस आज बहुत ज्यादा है, तुसी मेरा ख्याल है मेरी गल सुन। उसकी वजह यह है जब मैं देखता हूं कि हम किसी कलेक्टिव जहालत की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा। नहीं, सुन लें, आप बिल्कुल गुस्सा करें, मैं कोई और बात कर रहा हूं, आप बात नहीं मेरी समझे। एक, आप डायरेक्ट इलेक्शन अगर आप फिर आवाम को समझाना चाहते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा आवाम को, बेचारों को, आपको पता है, लेकिन आपकी आधी से ज्यादा आवाम जो है उनको पता, वो गैस को गैस कहते हैं, चौक को चौक कहते हैं। हम देहाती लोग हैं, हम सारे लोगों को ये डायरेक्ट इलेक्शन का भी नहीं पता, तो आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है सेनेट का
कि जैसे वो अपने एमपीए और एमएनए को वोट डालते हैं ऐसे ही सेनेटर को डायरेक्ट डालें, पूरी बात एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब वो फौरी तौर पर तो ये काम नहीं, तो आप ओपन वोट कर देना, वो भी वही बात है, पता लगेगा किस एमपीए ने कैसे आप कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, मैं आपकी कुव्वत इस्तदलाल की दाद देता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप वोट दिखा के डालने को और आम आदमी के वोट में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए दो बातें मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब एक गुजारिश, डॉक्टर साहब सॉरी, दिखा के ना डाले ना। अच्छा चले एक और बात कर लें, आप दिखा के ना डाले ना, आप दिखा के वोट ले रहे हैं ना लोगों से बजट के ऊपर, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए दिखा के वोट ले रहे हैं ना, ऐसे ही सानू मौत पैंदी है वोट दिखा के लैंड, या तो हर जगह पे ना लें हम, इधर हमें क्या खास तकलीफ होती है, ये कौन सा माफिया है जो हमें नहीं यहाँ पे ओपन वोट देने देता, या तो हर जगह आपने वोट की, ये माफिया नहीं है, माफ कीजिएगा, ये माफिया नहीं है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो समझते हैं कि सेनेट का वोट दिखा के डालना इस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी के खिलाफ है, और अगर इसको चलना है तो हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, हमें आम लोगों को वोट डालने की तरफ लाना होगा सेनेट। नहीं, ओहो, कॉन्स्टिट्यूशन को तो मैं अब आपको अगले दिन कह दूं कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, वो तो एक लंबी बहस है ना, जिधर को मर्जी चले, ये तो आराम से काम होता है। तरमीम कर रहे हैं तो आप ये कर लें, तो कर लें, बिल्कुल तो ला रहे हैं ना तरमीम, अब आ रही है तरमीम, तो यही तो हम कर रहे हैं। हमने कौन सा डॉक्टर साहब सवाल, डॉक्टर साहब सॉरी, फॉर्म दिखा के वोट करना है, लेकिन आपका ये कहना कि दिखा के वोट डालना तो बड़ा गैर आईनी काम है, तो फिर आप क्यों दिखा के वोट डालते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? उसकी वजह पार्लिमानी जमहूरियत का एक निजाम है कि इन 3 जगह पे हुकूमत टूट जाती है। नहीं, तो इस पे भी टूट जाएगी, इस पे कौन सा कुछ नहीं, इस पे हुकूमत, सेनेट पे हुकूमत नहीं टूटती। अपनी जगह मौजूद है कि तरमीम लाई कैसे जाएगी जब ऑपोजिशन आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये मरियम के सवाल से आगे, सॉरी कता कलामी की माजरत, डॉक्टर साहब सवाल जरा ऐड कर लीजिए जी। सवाल 2 हैं, मुख्तलिफ थोड़े से ऐड कर लीजिए। एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में एंड में कहा, या आज डॉक्टर बाबर रवान साहब ने भी कहा, क्या आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज करने जा रहे हैं, इस वक्त कोई वाज़े तरीके से ये भी नहीं पता चलता कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कोई आपके साथ है या नहीं है, इवन दो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनकी यही डिमांड थी। तो ये जो आइडिया है कि अगर वो आपके साथ नहीं वोट करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास होगी तो किसी वजह से वो एक्सपोज हो जाएंगे और आप अपने आप को प्लेस करेंगे एज अ पार्टी जो कि ओपन बैलेट करना चाहती थी और दूसरी पार्टीज़ वो हैं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की करना चाहती हैं। इस लॉजिक को थोड़ा सा समझाएं। क्या ये आज से हम समझ लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये असल में पास नहीं होगी, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर तफरीक बयान की जाए कि कौन ओपन बैलेटिंग करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता? अच्छा बैरिस्टर साहब, आपको ये बात समझाना सबसे आसान है पाकिस्तान में दूसरे लोगों की निस्बत। क्यों? क्योंकि आप मानने वालों में से हैं। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर जंग लड़ी तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा था कि नंबरों की बर्तरी जो है वो यजीद के पास है, और ये भी नजर आ रहा था कि हार जाना है। लेकिन आप वो लॉजिक के ऊपर तो वहां खड़े नहीं हो सकते थे कि मैंने हार जाना है। ना उनके साथियों ने उनसे लॉजिक पूछा। सवाल एक था, हक पे कौन खड़ा है, सच पे कौन खड़ा है। हम अपनी सियासत तक रहे, हम उनकी एग्जांपल ना दें, हम सिर्फ अपनी सियासत करें। मुझे देने देना, मैं वहां से बहुत कुछ ड्राइव करता हूँ ना, मैं सेक्रीफाइस भी वहां से ड्राइव करता हूँ, मैं बहुत कुछ ड्राइव करता हूँ ना। आप ना करें, मैं ड्राइव करता हूँ वहां से अपनी जिंदगी की डायरेक्शन। तो मेरी जिंदगी की डायरेक्शन ये है कि सच पे खड़े हूँ, उसके लिए आप सही नजर आ रहे हो, गलत आ रहे हो, आपने जीतना है नहीं जीतना, आपका ज़मीर ये कहता है कि आप सही पे खड़े हैं। मेरा ज़मीर ये कहता है कि मेरा लीडर इमरान खान पहली दफा जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाया था, इसी तरीके से अब वो कहता है कि ये चोरी चकारी बंद करो, ये रेट लगाने बंद करो, सेनेट का इलेक्शन ओपन करो, पता लगे किसने कहां वोट किया। अच्छा चलें जी, हबीब अकरम साहब को ना बताएं, शहबाज गिल को ना बताएं, कोई एक नॉमिनेट हो पार्टी में बंदा जो हल्फ दे दे उस पार्टी को ले आए सिस्टम। अच्छा गिल साहब, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस ज़ेरे समाअत है, दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये खदशा है पार्टी को कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आप लोगों के हक में नहीं आएगा?
नहीं, देखिए हम तो, वो तो आला अदालत का काम है ना, हम तो आला अदलिया का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला देंगे। हम कोई नून लीग तो है नहीं कि जस्टिस अजमत सईद जो हैं उनको नवाज शरीफ किसी कमीशन का जब सरबराह बनाए तो उस टाइम वो जो है बिल्कुल गैर जानबदार थे, और उन्हीं जस्टिस अजमत सईद को जब हमने सरबराह बनाया है कमीशन का तो अब वो जानबदार है। हम तो ये काम नहीं करते, हम तो हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं। मेरे पे एक झूठा केस है, मैं कल अदालत में उस पर पेश होने जा रहा हूँ, बिल दोबारा एहतराम करता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ कबूल करेगी। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में अगले टॉपिक की जानिब हमें बढ़ना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बदउनवानी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान के दर्जे में तनज़ुली के बाद अपोजिशन ने इसे हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत करार दिया, जबकि हुकूमती वज़रा यही तासुर देते रहे कि इस रिपोर्ट की तैयारी में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर का डेटा इस्तेमाल किया गया है। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो हबीब साहब आप ही हमें बताएंगे। हुकूमत तो मान नहीं रही कि ये उनके दौर की रिपोर्ट है। देखिए, जहाँ तक हुकूमत का मामला है वो तो ये भी नहीं मानती कि पाकिस्तान में कोई मुआशी प्रॉब्लम है। हालांकि फैक्ट ये है कि 2020 में जो नंबर्स दिए गए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो जीडीपी वो है वो नीचे की तरफ गया है। 2019 और 20 के माली साल में पाकिस्तान की तरक्की की शरह माकूस हो गई, यानी उलट हो गई है। अच्छा। तो वो हुकूमत तो ये भी नहीं मान रही, हुकूमत कह रही नहीं है इसकी वजह कोविड है। अच्छा। इसी तरह हुकूमत को ये भी इल्म नहीं है कि इंटरनेशनली हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी वजारत खारजा, हमारी जो खारजा पॉलिसी है अब वो उतनी अच्छी या उतने उस तरह रिजल्ट यील्ड नहीं कर रही जिस तरह पहले कर रही थी, तो हुकूमत इसको भी नहीं मान रही। तो हुकूमत ये भी नहीं मान रही कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई खराबी है। हुकूमत तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मान रही, तो हुकूमत ये क्यों मानेगी कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है? देखिए, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो करप्शन का मामला है, ये दुनिया में कोई भी, अगर इसकी जगह आप यूं कहिए कि PMLN होती तो वो भी ना मानती, पीपल्स पार्टी होती तो वो भी ना मानती। लेकिन जो ये हुकूमत कर रही है कि सब चीज़ों की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल देती है। देखिए, बात ये है, ये गुज़िश्ता का मामला जो है 1947 तक जाता है। अच्छा। उसकी वजह कि 1947 में आपको याद होगा कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो तकरीर की थी उसमें एक चीज़ का जिक्र किया था, नेपोटिज्म का, अकरबा परवरी का और करप्शन का। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जो एक सर्वे की बुनियाद पर मुरतब की गई पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उन्होंने 1200 तकरीबन कंपनियों से पूछा और उन सब ने एक जवाब मुत्तफिका दिए। वो क्या? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नेपोटिज्म सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में करप्शन फेवरेटिज्म की बुनियाद पे होती है। मैं अगर कहीं अफसर लग गया हूं तो मैं अपने भाई को ठेका दूंगा, मेरा भाई अगर कहीं लग गया तो मैं उसका फायदा उठा के कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। तो पाकिस्तान के अंदर ये इकोनॉमी के अंदर और हुकूमत के अंदर एक ऐसा लिंक पैदा हो गया है, एक ऐसे विशेष साइकिल में हम फंस गए हैं कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो फेयर बिजनेस है या छोटा बिजनेस है वो खत्म हो गया। अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि पाकिस्तान में ये जो खाद के कारखाने, ये कौन सी तारीफ के मुताबिक बिजनेस है? यानी हुकूमत से गैस लो, हुकूमत से सब्सिडी लो और खाद का कारखाना लगा लो, पक्के पैसे हैं। हाँ जी, बड़े ये कौन सा बिजनेस है? पाकिस्तान में सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न, ये कौन से बिजनेसेस हैं कि जितने पैसे लगाएंगे उतने 18% के हिसाब से इन्हें रिजर्व रिटर्न मिलता रहेगा? ये कौन सा बिजनेस है? पाकिस्तान में बिजली का कारखाना कौन सा बिजनेस है कि ना बिजली बेचो भी ना, बिजली खरीदो भी ना, लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं? ये कौन सा बिजनेस है? पाकिस्तान में ये जो अड्डा है, ये जो बस अड्डा है, ये कौन सा बिजनेस है? क्योंकि अगर आपका रिश्ता ताल्लुक हुकूमत के साथ तगड़ा है, 1-2 MNA MP आपके साथ हैं, DC आपके साथ है, तो अड्डे का लाइसेंस आपकी हथेली पे पड़ा हुआ है, वरना नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इस वक्त फेयर रह गया हुआ है सवाए चंद एक के? ये सोसाइटीज का बिजनेस, हाउसिंग सोसाइटीज का बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस है? भाई, अगर आपका कोई लगता फपता हुकूमत में, सरकार में अफसर है, किसी भी किस्म का अफसर है, समझ लीजिए किसी भी किस्म के अफसर पे जोर है, तो उस तरह का अफसर है तो आपकी सोसाइटी कामयाब है। आपका कोई लगता फपता MNA MP है, आपकी सोसाइटी कामयाब है। बसूरत दीगर आप ख्वार हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे वो भी बहुत अच्छी बातें करते थे। पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर हमारी जो बहुत सारी करप्शन है ना, उसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अब वो कानून का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, ये जो प्लॉट देना ये कानून का हिस्सा है ना, ये जो बेतुके अंदाज में चीजों को लीज कर देना ये कानून का हिस्सा है ना, ये कोटे ये कानून का हिस्सा नहीं, तो सारी अब तो कानूनी चीजें करप्शन बन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में नहीं थे तब वो भी ऐसी बहुत अच्छी बातें किया करते थे। वो बताते थे कि महंगाई क्यों होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को वो कितना सराहते थे। आइए वो सुन लेते हैं।
जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी, हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। 90 दिन के अंदर सारी टॉप लेवल की करप्शन मैं आपको खत्म करके दिखाऊंगा। सिंगापुर में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उस ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले करप्शन के ऊपर काबू पाया, अपने 3 वजीरों को जेल में डाला। तो साद, आपने सुना कि करप्शन के खात्मे का विजन लेकर पीटीआई आई थी हुकूमत में, लेकिन अब जो आदाद शुमार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है वो तो इस विजन को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। देखिए, इकबाल का एक शेर है जिसका एक मिसरा है कि जिसका पहला मिसरा कुछ इस तरह का है कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो तो वो कहते हैं कि खुद भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को और पीटीआई की गवर्नमेंट को अब माजी की हुकूमतों को ब्लेम कर देना, इस तरह की बातों में छोड़ देना चाहिए। आधे से ज़्यादा टर्म, 5 साल की जो टर्म है उसकी आधे से ज़्यादा टर्म गुजर चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे मुआहदे हो सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर, ऑयल सेक्टर के अंदर, एलएनजी के अंदर, जो कि इतने देर पा मुआहदे हैं जो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले साइन हुए थे, जिनके ऊपर हुकूमत ये कह सकती है कि जी हम बाउंड हैं पिछली हुकूमतों के कुछ मुआहदों से जिस वजह से हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं। लेकिन ये जो रोज़ बरोज़ की करप्शन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, ये जो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन है, ये जो हमारे सिस्टम की करप्शन है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की नहीं रह गई। ये हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई की है। और वज़ीर आज़म साहब को इस बात को डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी वजह से वो रिफॉर्म्स, वो वादे जो वज़ीर आज़म साहब ने करप्शन के पर्सपेक्टिव में किए थे वो पूरे नहीं हुए। और जब ये एक्सेप्टेंस होगी कि वो वादे पूरे नहीं हुए तो एक्सेप्टेंस के बाद ही हम कोई रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जब तक हुकूमत ये कहती रहेगी कि नहीं हमने अपने वादे पूरे कर दिए तो कोई रिफॉर्म का प्रोसेस प्रॉपर्ली शुरू नहीं हो सकता। ये बात तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं हबीब साहब की बात को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। हबीब साहब ने नेपोटिज्म की बात की और कहा कि नेपोटिज्म इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और नेपोटिज्म की तारीफ जो हबीब साहब ने की वो दुरुस्त की। और वो तारीफ ये है कि जब मैं किसी ओहदे पे आऊं तो मैं अपने रिश्तेदारों को, ख़ानदान को, फैमिली मेम्बर्स को मैं नवाजना शुरू कर दूं। तो मैं हबीब साहब को बताता चलूं कि हबीब साहब, जो लोग सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत की, और उसमें से कुछ हबीब साहब के दोस्त हैं बहुत करीब के, वो पार्टीज़ हैं जो चल ही नेपोटिज्म पे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जमहूरी पार्टी तो पता नहीं उसको कहां से कहा जाएगा, या पीपल्स पार्टी को कैसे कहा जाएगा, वो चलते ही नेपोटिज्म पे है। कोई मेरिट्स के ऊपर थोड़ी मरियम नवाज साहिबा लीडरशिप में है, वो नेपोटिज्म के ऊपर लीडरशिप के अंदर है, क्योंकि वो कायद की बेटी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को डिग्री लेके पॉलिटिक्स की तो लीडर बने हुए हैं, या उन्होंने कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की हुई है, कोई बड़ी उन्होंने पब्लिक रिस्पॉन्स उन्होंने देखा हुआ है। भाई वो सिर्फ इस वजह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट थी तो उस वक्त कोई 17 लोग कम से कम इस तरह के थे जो कहा जाता था कि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, या फर्स्ट कजन्स हैं, या भांजे हैं, या भतीजे हैं, आबिद शेरली साहब से लेके दीगर सारे लोग। तो नेपोटिज्म के ऊपर जरूर तनकीद करें, लेकिन करें वो लोग जिनका अपना दामन साफ हो। और हबीब साहब के कुछ दोस्त जो हैं उनका दामन पूरा का पूरा नेपोटिज्म के अंदर लगा हुआ है। इसके ऊपर तनकीद सिर्फ पीटीआई के अंदर नहीं हो सकती। नेपोटिज्म की वजह से मुआशरा आगे नहीं बढ़ पा रहा। प्रॉब्लम है हमारे कानून में, अब करप्शन पैदा हो चुकी है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और आपको बताना है कि वज़ीर आज़म ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़ी हैरत अंगेज़ बात की। उनका कहना था कि कोई भी कौम तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, ये बात समझ आ गई, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल इंतखाबात के बायस तवील मनसूबाबंदी नहीं हुई। उनका
कहना क्या था, सुन लेते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। 5 साल की टर्म होती है, कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज़ कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं, फिर बहुत ज़्यादा अरबों रुपया इश्तिहारों पे खर्च करें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन जीत। जो भी मुल्क तरक्की करता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से करता है। चाइना की अगर आप सारी स्टडी करें, डेवलपमेंट का जो उनका जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, और कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, आगे का ना। हबीब साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। मुझे खुद समझ नहीं, मेरे लिए हैरत की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, या शायद उन्होंने किसी मुशीर से ये नहीं पूछा कि अमेरिका में 4 साल का मामला है, दुनिया की सबसे बड़ी मुशीयत है, दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे 4 साल के लिए सदर मुंतखब होता है, 6 साल के लिए सेनेट मुंतखब होता है, और 2 साल के लिए उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब होता है। अच्छा। उससे वहाँ पे तो ऐसा मसला नहीं बना। इंग्लैंड में 5-5 साल के लिए जमहूरियत है और कई 100 साल से, अब 100 साल से ज़्यादा अरसा होने वाला है, वहां पे ये मसला नहीं बना। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इसी तरह के मामले, वहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये ख्वाब दिखाया कि आप बियॉन्ड 5 इयर्स भी किसी चक्कर में आप रहें और इलेक्शन को आगे कर दें या पीछे कर दें? ऐसा ना करें। प्राइम मिनिस्टर के पहले ही जमहूरी क्रेडेंशियल्स को बहुत अच्छे नहीं है, इस तरह की तकरीरों से और कमजोर होते हैं। और आज कमर ज़मान कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आज इस बयान पे गिरफ्त की। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को शायद कोई समझा रहा है, कोई ख्वाब दिखा रहा है कि जनाब 5 साल से आगे भी। उन्होंने बताया कि हमें भी ऐसे ख्वाब दिखाने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन ये पाकिस्तान दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। ठीक है साद, आपको समझ आई वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि मुझे और हबीब साहब को तो समझ नहीं आई। नहीं, मैं आपके साथ इसी कश्ती में सवार हूँ। इशू ये 5 साल के इलेक्शन का नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि हम 5 साल बाद अवाम को ये हक देते हैं कि अगर वो अपनी सियासी लीडरशिप से खुश नहीं है तो अवाम मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप चुन ले, और ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जिस बात की मेरा ख्याल है निशानदही प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं वो बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पता नहीं उन्होंने इसको किस तरह कहा, और वो ये है जो पिछले भी हफ्ते मैंने इसी प्रोग्राम में आपके साथ अर्ज़ की कि सियासत के मसाइल और हैं और रियासत के हमारे मसाइल और हैं। अच्छा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी 5 साल के टेन्योर के साथ कनेक्टेड नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा, पीस प्रोसेस क्या होगा, अमेरिकन फौजों का इनकला कैसे होगा, चाइना इंडिया के मसाइल कैसे होंगे, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा, ये किसी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल टर्म के साथ कनेक्टेड नहीं है। इन चीज़ों पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, आज सड़क किधर बनेगी, कल अस्पताल किधर बनेगा, वहाँ पर कितने वेंटिलेटर्स होंगे, डॉक्टरों की भर्तियां कैसे होंगी, ये चीजें पॉलिटिकल टर्म के अंदर की भी जा सकती हैं और 5 साल में मुकम्मल भी की जा सकती हैं। तो सियासी मसाइल जो हैं या सियासी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तो 5 साल की टर्म में हो सकते हैं, लेकिन रियासत के मसाइल जो हैं वो लॉन्गर टर्म हैं। दुख सिर्फ ये है कि हमारी सियासी लीडरशिप ने पिछले काफी अरसे के अंदर अपने सियासी मसाइल और छोटे छोटे सड़कें और चीजें तो बनाई, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रियासत के मसाइल थे उनके ऊपर फोकस नहीं किया। और मरियम, मैं आज खातून अव्वल अपनी भाभी बुशरा बेगम साहबा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग इनकी बात गौर से सुनते हैं और इनकी बात के बेशुमार मतलब निकलते हैं। अल्फाज का चुनाव ठीक कर लिया करें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।